Welcome back to another episode of Cricket Chat powered by Umar Sheikh. Today we have two big personalities in cricketing world. We're gonna have an amazing conversation. Hamza, welcome. Welcome to the show. Thank you for having us. Thank you. Hamza, I'm gonna start off the interview with you. You made it to U19 Canadian team, and then from there you went to senior team, and in between you played for so many leagues. So how has your transition been? Obviously, it's a long journey. Started back in 2009 when I first played for Canada Under 19s. I was lucky and blessed that after the very next year I got into the national team. I've seen a lot of players get lost in that pathway from under 19 onwards. So I consider myself to be blessed and lucky to be able to get into the national team the very next year, to be able to do decent and stick with the national team. I was lucky I had some really good senior players that guided me through that process, that journey. It wasn't easy, when you're sitting out games, and obviously Ashish Bagai, who was the captain at the time and also the wicket keeper. And I was obviously the backup wicket keeper in the team, but I had some senior players that guided me through that process, through that journey. And then when I did become the first wicket keeper for Team Canada, very quickly I got into the Americas team, and then from there I got into CPL, and I think that's where my cricketing journey really took off. It changed me as a person. It changed me as a cricketer. And yeah, and then rest is history. Yeah. Now, speaking of CPL, there was one game that you had before against the playing 11. You were facing Bravo, Narayan, and everybody else, and you smashed everybody. Uh, that was um, that was the second year. So the first year I went there, I I didn't get a game. I didn't get an opportunity. Obviously, you get into an environment for the first time where you have all these big players around you. You have Hashim Amla sitting next to you. You have Brendan McCullum sitting in the bus in front of you. You have Umar Akmal at the back. You have Colin Monroe, Dwayne Bravo, Sunil Narayan. I think the first year I was a bit starstruck. And but the second year when I got back, obviously the things that I'd learned from the first year was to believe in my own ability and not to be starstruck. Um, and so there's the second year when I went back. I remember the first net session I had. I told myself that I'm just gonna play my shots, not hold anything back. It was a decent net session, which I got surprised as well with some of the shots that I'd played. Obviously, the coach got surprised, the captain as well. And then the very next day, we had a practice game. And the practice game was TKR playing 11 versus a club team. And the guys that were not in the playing 11, like myself and some other young players, we were playing for the club team. Um, I remember I was supposed to bat at 3, but I didn't get to bat until number 5, so 3 down. Um, KKR batted first. They had scored 200 and I think 25 or 30 runs against us at the Brand Lara Stadium. Colin Monroe scored 100. A couple other guys got some runs as well. And I remember when I got to bat, we were 3 down and we needed, I think, 8 overs, 120 runs or so. And I remember I was walking in, and from one end, Sunil Narayan was bowling, and the other end, Shadab Khan was bowling. And we all know obviously how good Sunil is, and Shadab was, those was his early days right out of Champions Trophy. And I remember I was walking in and I looked up to the sky and I was like, God, you gave me an opportunity, and now you gave me an opportunity in front of two best spinners. Please help me out. I swear to God, that's what I said. I looked up to the sky and that's what I said. Um, so the first four, says they both had two overs left. So Shadab bowled 2 from one end, Narayan bowled 2 from the other end. My focus was to just play him out. I didn't want to get out to them. Luckily, I didn't get out to them, and by the time we hit the 16th over mark, we needed 80 runs in 4 overs. And the last 4 overs were bowled by, one was by Dwayne Bravo, one was Ronsford Beaton,
One was Kerry Pierre, who's a left-arm spinner, and actually, another the last one was also bowled by Ronsford Beaton. We needed 4 overs, 80 runs, and we lost that game by 8 runs. And luckily, when the Pacers came on, I started swinging my bat, started hitting boundaries, and I ended up scoring 70 odd of just 35 balls. Um, and I remember when I walked out, Javon Searles, who was also part of the team, he had played for United in the past, and he walked up to me and said, "Man, I just went out for a massage for 20 minutes, and I come out. What have you done?" I'm like, "I don't know. I was just swinging my bat, and everything just came off." So I think that was one moment. What it did for me was the self belief that I belong at this level. I can score runs at this level. If I can hit Bravo for 3 sixes in an over, I can do well here. And for Bravo and for the captain, obviously they looked at me as not just a number. They said, okay, we can actually slot him into the team whenever needed, and he'll do well. So that was a good change or a good moment for me when it came to changing my perception in front of their eyes, and also the perception of a Canadian player, that we're not just numbers. We're actually we play good cricket, and we can do well at that level. Now, some of the senior players, including Bravo, what did they say to you after that knock? Um, not much. Caribbean people don't say much, and when they don't say much and they only talk to you in 1 or 2 sentences, that means they're impressed by you. Um, and same with Bravo. He just came to me and said, "And I never thought you could play like this." Um, One person that was a bit worried was Ramdan, because he was a wicket keeper. But even though I was pushing for his spot, he's still a professional, so he still came to me and applauded the innings that I'd played. Still, I think in the team, I he was one of the guys that I had the best relationship with. So that was a really cool thing from his end as a senior player, that he didn't look at me as somebody that he would try to not help him feel comfortable in the environment. I think he did a lot for me, working on my keeping with me, with my batting as well, and over in general, just hanging out and all of that stuff as well. What's up? I want to ask you a couple of things now. आपने बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल प्लेयर्स के साथ काम किया है. Haris Rauf is one of them. You worked really closely with Salman Ali Agha as well, Miko, Abdullah Shafiq, and the list goes on, right? So, can you talk about the mental toughness as a coach when you're dealing with these players versus what we have here at local level? उसमें डिफरेंट यही होता है क्योंकि एक एक प्लेयर की ना हर एक की प्लेयर की एक जर्नी होती है। जो वो जर्नी होती है ना उससे ही उसको कॉन्फिडेंस अप एंड डाउन लाइफ में आता है। जब वो उस प्रोफेशनल जब होता है ना तो एज़ अ प्रोफेशनल खेलता है, तो वो ऑलरेडी ही उन चीज़ों पे सैक्रिफाइस कर चुका होता है जिसके लिए वो उस एग्ज़ीक्यूशन को ईज़िली फ़ील करता है। तो उसमें कोचिंग में उसमें बड़ा ईज़ी होता है, सिर्फ़ आप टैक्टिक्स पे ही काम करते हो, ज़्यादा उनके वो बेसिक स्किल्स के ऊपर नहीं आते, क्योंकि जो रिक्वायर्ड उस टाइम पे ऑन द स्पॉट होता है, वो प्रोफ़ेशनल को उसी टाइम ही एनवायरनमेंट दी जाती है। तो वो डिफरेंट है। जब आप नीचे बेसिक लेवल पे आप जाते हो ना, वहाँ पे आप बेसिक के ऊपर काम करते हो, तो वो ज़्यादा बायोमैकेनिक के ऊपर होता है। तो वो उसको उस स्किल्स को एनहांस करने के लिए बच्चे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक पे ही रहते हैं। तो सम टाइम जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो अगर सम टाइम आउट ऑफ समझ लें कि परफॉर्मेंस जो उनकी नहीं हो रही होती, तो फिर उसको उसके थोड़ी-सी वीडियोज़ देखी जाती हैं, फिर उसको वापस बैक बेसिक पे ले आते हैं, तो वो फिर उसके एग्ज़ीक्यूशंस शुरू हो जाती है, रेपिटेशंस करते हैं उस चीज़ के ऊपर। तो ये डिफरेंट है कोचिंग का और इंटरनेशनल लेवल का और नीचे लेवल का। सही है। मैं एग्री करता हूँ आपसे। और एक और चीज़ जो अक्सर हम देखते हैं, जो लास्ट में थ्रिलर्स होते हैं, हर एक प्लेयर एक चीज़ इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकता। उसके लिए क्या है, कोई ऐसी चीज़ें जो जो लोकल प्लेयर्स हैं वो करनी चाहिए उन्हें, जो इंटरनेशनल प्लेयर करते हैं? सिंपल है कि वो उनकी ना क्वालिटी और क्वांटिटी पे करते हैं काम। जितनी भी रेपिटेशंस हैं, उस मेन की पॉइंट है रेपिटेशंस। जितने स्किल्स को एनहांस करने के लिए वो रेपिटेशंस आप जितना ज़्यादा करेंगे ना, उतनी ही आपके वो शॉट सिलेक्शन पे जल्दी इम्प्रूवमेंट आएगी।
दैट्स इट सिंपल। सो एक प्लेयर है जिनका मैं थोड़ा पढ़ रहा था और देखा भी मैंने इंटरनेट पे कि जो हैं हमारे हारिस राव, ही स्पीक्स वेरी हाईली अभी। आपने उनके साथ फील्डिंग पे भी काफ़ी काम किए हैं और उनके साथ ऐसे भी आपने ओवरऑल काम किया और बिग हिटिंग के पावर में भी आपने बहुत ज़्यादा प्लेयर्स के साथ काम किए। उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? अ, उसमें जो मुझे अच्छी क्वालिटी लगी ना उसके अंदर, वो फाइटर है, ठीक है? और वो एक चीज़ को कमिटमेंट जो एक डिसीज़न देते हैं ना कि भई आज आपने ये करना है, तो वो बड़ी जल्दी इसको कहते हैं कि वो उस चीज़ को अडॉप्ट करता है और एग्ज़ीक्यूशन करता है। तो वो उसके अंदर जो सेंस है ना वो बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से वो अभी तक स्टिल खेल रहा है। सिर्फ़ उसको एक चीज़ पे लैक कर रहा है, वो न्यू बॉल पे, ठीक है? उसकी जो स्ट्रेंथ है वो यॉर्कर है और डेप्थ ओवर है। तो उसके ऊपर जो मैंने ज़्यादा काम किया वो इन चीज़ों पे ही किया था। तो वो माशाल्लाह उस चीज़ पे उसने कंटिन्यू रखा और स्टिल वो वर्क कर रहा है और वो उसमें ये है डेडिकेटिंग और उसमें हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो स्टिल अभी तक वो सर्वाइव कर रहा है। सबसे ज़्यादा आपको वर्क एथिक किसकी पसंद आई? डेविड विज़ी इज़ वेरी गुड, इज़ हैज़ बीन इज़ जेंटलमैन, जो कहते हैं ना जिससे कुछ सीखना है, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। एज़ ए डिसिप्लिन, एज़ ए हम्बल और जिस चीज़ के ऊपर वो स्किल्स के ऊपर काम करता है ना, तो उसको पता है क्योंकि वो खुद भी कोच लेवल 3 है। तो वो समझता है कि अगले की भी बात, अगले कोच की भी बात, अपनी भी वो डिसीज़न लेता है फिर उसके बाद कि ये चीज़ ठीक है मेरे लिए, देन वो विल डू, वो करता है फिर। अच्छा, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है कि मैंने उससे सीखा। हालाँकि आप कोच हैं और कोचिंग में भी आपकी लर्निंग जर्नी कभी स्टॉप नहीं होती। 100% ऐसे ही, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्योंकि मैं ये नहीं देखता कि सामने कौन है, चाहे बच्चा है, चाहे जो भी, जो मुझे उससे मिल रहा है ना, तो वो मेरी लर्निंग है नेक्स्ट। तो मैं इसलिए ना ये चीज़ें अडॉप्ट करता हूँ, जितनी जल्दी हो। वो अडॉप्ट करके मैं नेक्स्ट किसी ऐसे स्टूडेंट पे वो एग्ज़ीक्यूट करता हूँ। क्योंकि ये चीज़ें जो कोचिज़ के लिए आपको मेन की यही होता है कि टैक्टिक्स, आपने दूसरे प्लेयर्स के भी माइंड्स पढ़ना है, वो उसके बायोमैकेनिक किस तरह एग्ज़ीक्यूट हो रहे हैं, उसके माइंड को और उसके बायोमैकेनिक को, वो कम्युनिकेशन जो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो अगर आप रीड कर लेते हो ना, तो ईज़िली ये प्लेयर आपके लिए मुश्किल नहीं है, स्किल डेवलपमेंट के लिए। अक्सर क्या होता है विद कोचिंग, हमज़ा यू वुड एग्री कि हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं फिजिकल और प्रैक्टिस पे, बट देयर सो मेनी थिंग्स दैट गो बिहाइंड द सीन जो एक अच्छा कोच समझ सकता है। तो जो अगर हमारे यहाँ पे कोई कोच देख रहा है, वो अपनी गेम को कैसे एज अ कोच कैसे इम्प्रूव कर सकता है इस चीज़ को? उसको बेसिकली कोच जो है ना, वो पेशेंस है। जितने अपने कंट्रोल करेगा ना पेशेंस, तभी कोचिंग आएगी। अदरवाइज़ वो अपने वही फीलिंग रखेगा ना कि मैं एज़ ए क्रिकेटर हूँ अभी भी, तो वो एग्ज़ीक्यूट नहीं करवा पाएगा। क्यों? वो अपने आप को वही क्रिकेटर समझ रहा है और वही उसके अंदर अडॉप्ट किया हुआ कि मैं वो ही हूँ। तो उसलिए वो स्टूडेंट जो है ना उसके लिए मुश्किल होती है और कोच के लिए भी मुश्किल होता है। वो सम टाइम हाइपर हो जाता है। अक्सर कोच हाइपर हो जाते हैं। वो अपने आप को वही फ़ील करते हैं कि मैं ही हूँ छोटा और मेरी तरह ही शॉट्स मारो, जो मैं मार रहा हूँ। लेकिन ये नहीं उस टाइम पे कोच समझ रहा कि वो डिफरेंट है और आप इस टाइम पे प्लेयर नहीं हो, कोच हो। ये बस मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर कोचेज़ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ीक्यूट इस तरह का माइंड इनका। मैं चाहता हूँ कि अगर वो क्रिकेट्स खैर बात कह दिया ना, गुड बाय, तो उसके बाद जो कोचिंग है ना, वो सिर्फ़ वो यही देखे कि कोचिंग में आपको क्या-क्या चीज़ें अडॉप्ट करनी है और एग्ज़ीक्यूट करनी है। ये बस डिफ़रेंट आ रहा है प्लेयर और कोच में। तो मेरी नज़र में तो ये मैं देखा अपनी लाइफ़ में, क्योंकि मुझे भी 12 इयर्स हो गए हैं कोचिंग करते हुए। अक्सर मैं कोचिंग के साथ ये देखता रहता हूँ कि होता है ये। मैंने आपको खुद भी पर्सनली देखा हुआ है कोचिंग करते हुए, तो एक कोच का जो पैशन होता है हमज़ा, मे बी you've seen him with like when he works with these younger players in your academy, he's putting in all, you know ये बड़ा रेयर चीज़ है। वो एक्चुअली भला क्या है, ये एक मेरी नेचर है। अगर मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी ना, एक जुनून था, ठीक है? तो वो जो जुनून है ना, वो मेरे अंदर वही है। लेकिन मैंने एक चीज़ चेंज की है, उसमें जैसे मैं प्रोफ़ेशनल था ना क्रिकेटर, वो जुनून था ना, वो मैंने कन्वर्ट किया कोचिंग में। मैं प्लेयर नहीं फिर दोबारा बना।
कि मैं प्लेयर हूँ, नहीं, मैं कोच हूँ। मैं उस चीज़ को अडॉप्ट किया और मैं कोच बना। वो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ उस चीज़ के साथ। Oh, that तो वो is मेरा बिग रीज़न है कि मैं उस टाइम पे अब कोच हूँ, तो मेरे अंदर जो वो चीज़ें हैं ना, मैं वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रेशर भी हैंडल करता हूँ, क्योंकि मेरी जो जर्नी है ना, वो सारी ही प्रेशर है। प्रेशर में रहा हूँ, स्टिल अभी भी। तो वो मेरी लाइफ़ होता है ना, एक बंदा एक लाइफ़ पे जाके बंदा थोड़ा स्टैंड कर जाता है, ईज़ी हो जाता है, कोचिंग में भी ईज़ी हो जाता है। लेकिन नहीं, वो मेरी लाइफ़ अभी तक वही है और वो ही पैशन है, और वो डे बाय डे ना, मैं ये नहीं समझता कि बोर नहीं फ़ील करता। लेकिन वो मेरे लिए आगे एक और स्टेप मिल जाता है मुझे, वो करने का, कि नहीं यार, मैंने गिव अप नहीं करना, मैंने करना है। तो वो चीज़ मेरे अंदर एक नेचर है, अल्लाह ताला ने एक अच्छे, मुझे बड़ा अच्छा फ़ील होता है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी अच्छी नेमत दी है, मैं शुक्र अदा करता हूँ इसी चीज़ के लिए। हमजा, आपको कोच साहब की सबसे बेस्ट चीज़ क्या पसंद है? अरे इन्होंने हाईलाइट खुद ही कर दी जो पैशन है उनका। और मैंने आई थिंक ये कैलगरी में कोई 200 दफ़ा बात कर चुका हूँ, जो भी एकेडमी पे आता है, जो भी मिलता है, कि ये अकेले कोच हैं जिनके साथ मैंने इतना अर्सा, मतलब काफ़ी कोचेज़ के साथ काम किया है 2006 से लेके अब तक। ये पहले कोच हैं जिन्होंने मुझे फ़ील कराया था कि ये वाक़ई मेरी गेम में इन्वेस्टेड हैं। ये वाक़ई चाहते हैं कि मैं इम्प्रूव करूँ। बाकी कोचेज़ भी था, वो चाहते हैं इम्प्रूव करो, लेकिन जो पेशेंस की बात की है कि बाकी कोचेज़ क्या होता है, अगर आपको, और मैं इतना कोई स्मार्ट वो नहीं हूँ कि मैं, कोई मुझे एक बात बोलेगा मैं राइट अवे क्लिक कर लूँगा। मुझे थोड़ा टाइम लगता है नेचुरली। तो बाकी कोचेज़ क्या होता था, या मतलब जनरली वैसे मेरे साथ नहीं, वैसे भी जो मैं देखा है कि कोच जो है गिव अप कर जाते हैं। वो आपको एक बात बात बताएँगे, आपको नहीं समझ आ रही ना, वो कहेंगे अच्छा उधर जाके करो, मैं आता हूँ, या वो कहीं और लग जाएँगे। तो जब हम 3 साल पहले मैं और फरहान लाहौर कलंदर के कैंप पे गए थे, हम लकीली इनको मिले, और लाहौर कलंदर ने इनको असाइन किया था कि हम दोनों के साथ काम करें। और हम जो ये हमारे हमें ट्रेनिंग करवाते थे, हम सुबह 5 या 6 बजे ये हमें ग्राउंड पे बुलाते थे। पहले हम ट्रेनिंग करते थे 10-11 बजे तक। फिर ये हमें थोड़ा-सा रेस्ट देते थे, हम जाते थे वापस हॉस्टल, वहाँ सोते थे 2-3 घंटे, क्योंकि उस वक़्त वेदर हो रहा था 45 टू 50 डिग्री हो रहा था। और फिर हम 3 बजे फिर आते थे, और रात के 10 या 11 बजे तक फिर प्रैक्टिस करते थे, जब तक लाइटें नहीं बंद हो जाती थी। एक दिन तो ऐसा था कि हम थक गए थे, हमने कहा शहज़ाद भाई, बस आज के लिए इनफ है। वो शुक्र है उस दिन बारिश हुई तो लाइटें ना उड़ गईं, वो इलेक्ट्रिसिटी उड़ गई। तो हमने दुआ की, या अल्लाह अभी आए ना लाइट आज। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि वो हमारी जान नहीं छोड़ रहे थे कि यार आपने सुबह 4 घंटे हमें प्रैक्टिस कराई है, फिर 6 घंटे कराई है, 10 घंटे हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब हमें घर जाने दें। लेकिन जब तक वो जो सोच के आए कि यार आज इस चीज़ पे काम करना, और वो चीज़ अचीव नहीं हो जाती ना, वो छोड़ते नहीं थे। और यही चीज़ मैंने नोटिस की है एकेडमी में भी। ये कितने वन ऑन वन सेशन कराते हैं। वन ऑन वन सेशन होते हैं 1 घंटे के। कितनी बार हुआ है मुझे अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि वो 1 घंटे से 1.5 घंटा हो चुका होता है, सही। और ये लगे हुए होते हैं। और मैं इनको याद कराता हूँ कि सेशन ख़त्म हो चुका है आधा घंटा पहले। लेकिन उनके दिमाग में ये होता है एज़ अ कोच कि यार जो ये चीज़ मैं इस बंदे के लिए आज फ़िक्स कराने की कोशिश कर रहा था, ये अभी तक हुई नहीं है। वैल्यू। तो जब तक ये होगी नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ूँगा। तो वो चीज़ ना मैंने बहुत कम लोगों में देखी है। मुझे अभी भी काफ़ी लोग आके कहते हैं कि यार आप और कोचेज़ ढूँढ रहे हो। मैं XYZ को जानता हूँ, वो लेवल 2 कोच है, लेवल 3 कोच है, लेवल 4 कोच है। हाँ, हम ढूँढ रहे हैं कोचेज़, लेकिन लेवल होने का ये मकसद नहीं है कि वाक़ई वो अच्छा कोच है। ठीक है? आप जाके, मैंने बहुत लेवल 3 कोचेज़ देखे हैं, जो बड़े ही मतलब आप कहो कि नॉर्मल कोचेज़ होते हैं। ठीक है? मैंने लेवल 1 कोचेज़ भी देखे हैं जो बहुत अच्छे कोचेज़ होते हैं। तो इनका, कमिंग बैक टू हिम, कि इनका मेन जो पैशन और जो पेशेंस है, वो मैंने आज तक किसी भी कोच में नहीं देखा। वाह! और आज तक ये मेरे साथ, अभी कल परसों भी प्रैक्टिस कर रहे थे, एक और चीज़ पे हम काम कर रहे हैं जो मुझे फिर समझ नहीं आ रही। अब आहिस्ता-आहिस्ता 3-4 दिन बाद आना शुरू हो गई है। तो वो पेशेंस जो है इनका कम नहीं हो रहा, कि भाई अच्छा ये तो इसको तो समझ आती नहीं है, लेकिन चलो कोई नहीं, फिर भी ट्राई करते हैं। यही बात आपने बोली कि ही इज़ वेरी इन्वेस्टेड इन हाँ। इन प्लेयर्स, कि जो किसी को सिखाना है तो फिर पूरे तरीके से सिखाना। स्पीकिंग ऑफ दैट, मुझे थोड़ा बहुत पता है इस बारे में कि आपके साथ साइमन कैटेज ने काफ़ी काम किया, राइट? सो कैन वी टॉक अबाउट हिज इन्फ्लुएंस ऑन योर बैटिंग?
हाँ, साइमन कैटरिच हमारे साथ था जब मैं टीकेआर में दूसरे और तीसरे साल था। और with Simon Carriage, I was only there a month and a half. So it wasn't a long time. लेकिन वो जो मंथ एंड हाफ में जो उसका वे ऑफ जो कम्युनिकेशन थी ना, वो बहुत क्लियर थी। और मैंने जो नोटिस किया है, अपना एक सवाल अभी कोच शहजाद से ही पूछा है कि मेंटल जो हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं लोकल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे फ़र्क क्या है? वो सिर्फ फ़र्क क्लैरिटी का है। लोकल लेवल पे आप अपनी टीम की प्रैक्टिस पे जाओगे ना, सारे कोच होते हैं, ठीक है? आप घंटे की प्रैक्टिस होती है उसमें या 2 घंटे की होती है, आपको 10 मिनट बैटिंग मिलती है, 10 मिनट में आपको कोई प्लेयर बोलेगा आपका पाँव नहीं चल रहा, कोई कहेगा आपका सर गिर रहा है, कोई कह रहा है आपका बैट हैवी है, कोई कहेगा कुछ हाथ पे पहन के आ जाओ। तो बाय द टाइम आप 10 मिनट ख़त्म होते हो, आपको तो लगता है आपको क्रिकेट ही नहीं आती। वहाँ पर Yeah, क्या होता है कि वो सिर्फ़ पॉज़िटिव चीज़ों पे एम्फेसिस डालते हैं reinforcement. और वो आपको इतनी क्लैरिटी दे देते हैं ना कि आप जब जितना भी बड़ा मैच हो और आप जब मैच में जाते हो ना, आप सिर्फ़ एक चीज़ सोचते हो कि मैंने बॉल देखनी है और आप रिएक्ट करते हो। आप ये नहीं सोचते कि यार ये शॉट मेरा प्रैक्टिस में चल नहीं रहा था, मेरे दोस्त ने कहा कि ये शॉट सही नहीं है, तो क्या ये शॉट मारने पे आउट तो ना हो जाऊँ मैं? या बॉल मेरा इन स्विंग पे मैं फँसता हूँ, मैं आउट तो ना हो जाऊँ कहीं? या अगर मैं आउट हो गया तो टीम से ड्रॉप तो ना हो जाऊँ कहीं? तो लोकली आप यही सोचते रहते हो। लेकिन उस लेवल पे इतनी क्लैरिटी आपको मिल जाती है अपने कोचेज़ से, अपने कैप्टन से कि आपको इस चीज़ का इश्यू ही नहीं रहता। और वो चीज़ साइमन कैटिच और ब्रावो दोनों ने मुझे दी थी कि जो मैच में खेला भी था सेमीफाइनल में सीधा, वो ब्रावो ने मुझे एक सवाल पूछा था, सेमीफाइनल खेलना है? मैंने कहा हाँ, ऑफ कोर्स खेलना है, ये कैसा सवाल है? कहता है सुहेल तनवीर को खेल लोगे? क्योंकि वो उस वक्त अच्छा कर रहे थे और अब पहला ओवर करते थे। मैं कहा हाँ, खेल लूँगा। कहते हैं ओके, डन। और साइमन कैटिच ने सिर्फ एक एडवाइस दी थी अंदर जाने से पहले, वॉच द बॉल, बस। और कोई नहीं कि सोहेल तनवीर है 140 क्लिक्स कर रहा है, इधर आउट स्विंग करता है, फील्ड ये रखेगा, बॉल ये करेगा, पैडों पे करेगा तो स्विंग नहीं होगा, कुछ नहीं, जस्ट वॉच द बॉल एंड रिएक्ट। बातों बातों में से एक बात याद आ गई है मुझे। Years ago you told me कि जब मैकलम के साथ आपकी बात हुई वर्ल्ड कप फाइनल में, he's like I did everything right but I just forgot to watch the ball. पहली बॉल पे या दूसरी बॉल पे बोल्ड हो गया उसका। हाँ, ये ये मज़े की बात है कि मुझे ना बहुत शौक है कि क्रिकेट के बारे में बात करने का प्लेयरों से। तो जब मैं पहले साल टीकेआर में गया था, मुझे पता था गेम तो मिलेगी नहीं, पहला साल है, कनाडा से आ रहा हूँ। तो मुझे था यार ये सारा टाइम मैं कैसे यूटिलाइज़ करूँ? प्रैक्टिस तो कर ही रहा हूँ। लेकिन मैं क्या करता था, हाशिम भाई के साथ बैठता था घंटों, क्रिकेट के बारे में बात करता था, ब्रेंडन मैकलम के साथ, डैरेन सैमी को पकड़ ली, जो भी बड़ा अच्छा प्लेयर दिखा, उससे बात करना शुरू कर देता था। तो मैकलम एक दिन पूल में था, तो मैं देखा ये अकेला है, तो मैं भी घुस गया पूल में। तो मैंने कहा ऐसे ही कैप्टेंसी के लीडरशिप के बारे में उससे कि यार तुम न्यूज़ीलैंड टीम को कहाँ से कहाँ लेके आए हो, जो टीम सेमीफाइनल में हमेशा हार जाती थी, बड़े मैचेस में हमेशा हार जाती थी, कैसे तुम उनको फाइनल तक ले गए हो? हाँ, हारी फाइनल में लेकिन पूरा क्रिकेट चेंज कर दिया। बिल्कुल। तो उस कॉन्वर्सेशन के दौरान बात हुई, वो अपने पे आया कि वो 2011 का जो वर्ल्ड कप था, उसमें वो रिटायरमेंट का सोच रहा था और उसमें हमारे अगेंस्ट मैच हुआ था न्यूज़ीलैंड का। और वो हमें दुआएँ बहुत देता है कनाडा को कि उस मैच में उसने 100 मारा था हमारे खिलाफ और उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया था, उसका करियर रिवाइव हो गया था। माइंड चिल कर दी। अगर वो उस दिन कनाडा के खिलाफ जल्दी आउट हो जाता, तो शायद ये मैकलम जिसने बाद में 300 मारा, न्यूज़ीलैंड की क्रिकेट को चेंज किया, आईपीएल में इतना अच्छे इंग्लैंड। किया, इंग्लैंड बिल्कुल, इंग्लैंड का कोच बना है, ये सब चीज़ें शायद ना होती। तो वो वाक़ई मुझे उसने कहा कि यार मैं आप लोगों को थैंक यू बोलता हूँ कि आप लोगों की वजह से मैं वापस मेरा क्रिकेटिंग करियर रिवाइव हुआ। तो उस वर्ल्ड कप में क्या हो रहा था कि वो कहता है जो मैं फ़ेल हो रहा था, मैं सब कुछ कर रहा था। मैं प्रैक्टिस भी कर रहा था, अपने आप को पॉज़िटिव थॉट्स भी दे रहा था, लेकिन मैं एक चीज़ भूल रहा था कि मैं बॉल को ही नहीं देख रहा था। कहता है आई वाज़न्ट वाचिंग द बॉल और मैं सारा कुछ कर रहा था। तो बड़ी सिंपल सी बात है। कितना इम्पोर्टेंट ये चीज़ है अब यंगस्टर्स जो हमें होपफुली देखें ये चीज़ कि ये एडवाइस अगर आप ले लें तो आपकी क्रिकेट किधर से किधर चले जाए। राइट। अच्छा, अभी नाउ स्विचिंग बैक टू यू बट साहब, आपने बहुत बड़े प्लेयरों के साथ काम किया है, राइट? और आपने टोरंटो नेशनल में शाहिद अफरीदी के साथ भी काम किया है।
और भी जो सुपरस्टार्स हैं हमारे, और आप उनके साथ जब काम करते हैं, जब इतना बड़ा कैलिबर एक प्लेयर का, तो उसमें क्या डिफरेंस है? उसमें डिफरेंस यही है कि सिंपल वही हमज़ा भाई की बात जो दोबारा रिपीट करने की बात नहीं है, लेकिन वो ये है कि ईज़ी है। क्योंकि हर प्लेयर से जो है ना बिफोर द सेशंस पूछ लेते हैं कि क्या आपको इस टाइम पे एग्ज़ीक्यूट करना है? तो वो सिंपल है, वो कहता है मुझे आज ये पावर हिटिंग करनी है, ठीक है? मेरी ये शॉट्स सही कनेक्ट नहीं हो रही, ठीक है? उसके ऊपर रेपिटेशंस करने शुरू कर देते हैं, ठीक है? तकरीबन 50 100 बॉल वो करते हैं, वो वापस रिपीट वो उसकी जो जर्नी थी पावर हिटिंग की, वो दोबारा परफॉर्मेंस की तरफ एनहांस हो जाती है। सिंपल है, हर एक का ना डिफरेंस है। कोई बैटिंग में पावर हिटिंग की तरफ चला जाता है, कोई कहता है मैंने यार थोड़ी-सी बॉलिंग है, वेरिएशंस नहीं मेरी आ रही थोड़ी-सी, मेरी देखना चेक करना ज़रा, मेरा आर्म ज़रा लैंडिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। वो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उस टाइम पे करते हैं कि जब आपका बिफ़ोर द मैच आपके पास टाइम है, तो थोड़ा-सा एग्ज़ीक्यूशन की तरफ चले जाते हैं कि ये चीज़ें इम्प्रूवमेंट की तरफ चली जाएँ। भैया, तो वो उससे एग्ज़ीक्यूशन अच्छा हो जाता है, फिर मैच जैसे एक डेविड विज़ी है। डेविड विज़ी का ना चेंज ऑफ पेस नहीं बॉल हो रहा था ना, वो वेरिएशंस, वो बहुत तेज़ जा रहा था। तो वो होपफुली ये लास्ट ईयर 2004 या 3 में वो उसका जो है ना बॉल, वो सही एरिया पे नहीं गिर रहा था। थोड़ा-सा तेज़ जा रहा था जिसकी वज़ह से उसको बाउंड्रियाँ लग रही थी। उसमें क्या था, उसका जब लैंडिंग था ना तो वो रीड हो रहा था आर्म स्पीड जो है। वो उसी आर्म नेचुरल आर्म स्पीड से बॉल नहीं कर रहा था। वो उसको थोड़ा-सा डिले कर रहा था जिससे ईज़िली रीड हो रहा था वो। तो वो उसके ऊपर फिर काम किया तो उसका वो दोबारा वो रेपिटेशंस किए, उसके 2 से 3 ओवर कंटिन्यू हर सेशंस में करते रहे। वो जल्दी इम्प्रूवमेंट आ गई, उसको समझ लगी कि मैंने ये चीज़ें आर्म स्पीड को स्लो नहीं करना। तो उससे वो उसकी वेरिएशंस डेवलप हुई, उसके बाद वो परफॉर्मेंस करनी शुरू कर दी उसने। ये की सिंपल प्लेयर फॉर लाहौर कलंदर। हमजा, आपने खेला शाहिद अफरीदी के साथ, ठीक है? इज़ अ क्राउड पुलर, वी ऑल नो। ह्यूमिलिटी के बारे में अगर बात करें, तो उससे बंदा आपने क्या सीखा? यार एक तो हमारा जो टोरंटो नेशनल्स का जो कल्चर था ना, या एनवायरनमेंट था, बहुत अच्छा था। अम, उसमें जो सारा मतलब एक तरह से जो कंफर्ट जोन था हम सारों के लिए, कि जो ओनर्स थे उनको भी हम जानते थे, जो 5 के 5 थे। मंजूर भाई हैं, उस्मान भाई, उमर भाई, तौसीफ भाई और लुकमान भाई। और जो मैनेजमेंट आई, समीन भाई को भी हम जानते थे, जो लाहौर कलंदर के ओनर हैं। फिर इनसे मुलाकात हो गई थी लाहौर में, तो इनके साथ बड़ा अच्छा कनेक्शन बन गया था। और फिर उसके बाद जब हम वहाँ गए तो मैंने हमेशा से ये सुना था कि शाहिद आफरीदी जो हैं वो बहुत ही एरोगेंट, बहुत ही थोड़े से बदतमीज़ टाइप के, उस टाइप के प्लेयर हैं। तो मैं भी ऑब्वियसली जब इन्होंने कैप्टन अनाउंस किया तो मुझे भी थोड़ा सा था कि यार शाहिद भाई अगर ऐसे हैं और मैंने कैप्टन करना है तो मैं तो गया। अम, बाकी प्लेयरों का इतनी टेंशन नहीं थी। कॉलिन मनरो को मैं जानता था पहले से, सिकंदर भाई को जानता था, डैरेन ब्रावो को जानता था। ज़मान ज़मान को नहीं एक्चुअली जानता था, लेकिन शाहिद भाई का मुझे थोड़ा-सा था। लेकिन वो पहले दिन ही जब मैं अनाउंस हुआ था कैप्टन, वो मुझे साइड पे लेके जाके उन्होंने जो मुझे एडवाइस दी, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि अपनी परफॉर्मेंस को किस तरह देखना है, टीम को किस तरह लेके चलना है। और मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि शाहिद भाई आपने किस नंबर पे बैटिंग करनी है? तो वो कहते हैं, वो ऐसे क्योंकि उनसे छोटा हूँ काफ़ी, तो बच्चा करके बात करते थे, बच्चे कहीं भी भेज देना। तो मैं कहता नहीं शाहिद भाई आप बताओ आपने किस नंबर पे बैटिंग करनी है? कहते हैं बच्चे कहीं भी भेज देना। तो अगर कोई बंदा कॉकी होता है या कोई बंदा एरोगेंट होता है तो वो कहता है मैंने इस नंबर पे ही जाना है, सही। चाहे जो हो जाए। तो उनका एक तो ये स्टेप बहुत ही पॉजिटिव था कि मतलब मेरे लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर था कि नहीं ये बंदा ऐसा नहीं है। बॉलिंग का मैंने पूछा, उन्होंने कहा मेरी बैक थोड़ी-सी ख़राब है तो बॉलिंग मत देना मुझे। तो मैंने कहा चलें ठीक है कोई बात नहीं। सही। अच्छा, एक दूसरा मैच हुआ हमारा ब्रैम्पटन बुल्स के ख़िलाफ़। थोड़ा-सा टर्निंग विकेट था, स्लो विकेट था और मैच जो है हम हार रहे थे बड़ी बुरी तरह। फिर एकदम से मैच में आए और एक आउट ऑफ नोवेयर शाहिद भाई मेरे पास आए और मुझे कहते हैं मुझे ओवर कराने दो। मैंने कहा शाहिद भाई आपकी बैक? कहते हैं कोई बात नहीं 1 ओवर कराने दो। 1 ही कराऊँगा सिर्फ़। मैंने कहा चलें आप कराएँ। उन्होंने कराया आई थिंक 1 या 2 विकेटें ली 1 ओवर में, 1 विकेट ली मेरे ख़्याल से पहले ओवर में।
अच्छा, मैं फिर सोचना शुरू हो गया कि अब अगले उधर से इनको तो एक ही ओवर ही करा सकते हैं, बैक का मसला है, अगला ओवर कौन कराएगा? मैं वो सोच रहा था, उसी दौरान मेरे पास आए, कहते हैं, "हमज़ा, एक और ओवर, एक और ओवर।" ये बिल्कुल इस तरह से कोई बच्चा आपसे कुछ माँगता है ना, मैंने कहा, "शाहिद भाई आपकी बैक।" कहते हैं, "प्लीज़ बस बच्चे एक ओवर करने दो।" मैंने कहा, "चलें आप कर लें एक और ओवर।" उन्होंने एक और ओवर किया, एक और विकेट ले ली। अच्छा, फिर मैं सोचना शुरू हो गया कि ओके, अब ये इनको नहीं दे सकते क्योंकि आगे भी मैचेज़ आ रहे हैं, कोई इस वक़्त ये दूसरा मैच था सिर्फ़ और 5 मैच अभी रहते थे। तो मैं सोचना शुरू हो गया अब अगला ओवर उधर से किसको देंगे? जैसे ही ओवर ख़त्म हुआ मैंने सोचा था 7 को ओवर देंगे हम, ठीक है? 7 को मैंने बुलाया, शाहिद भाई फिर भागते हुए आ गए। कहते हैं, "बच्चे प्लीज़ एक और ओवर।" मैंने कहा, "शाहिद भाई आपकी बैक ख़राब हो गई तो आगे मैच कौन खेलेगा?" कहते हैं, "नहीं, आज मैं गिर जाऊँ लेकिन मैंने ये मैच जिता के देना है।" तो मैंने कहा, "चलें आप करा लें एक और ओवर।" तो उन्होंने 4 ओवर कराया उस मैच में और आखिरी ओवर में मैच जो फँसा आखिरी विकेट तक गया, उनकी वजह से गया। हम मैच हार गए थे क्योंकि आखिर में ऑब्वियसली काफ़ी लेट हमारी ये विकेटें आना शुरू हुई थी। लेकिन उनका जो तरीका था बात करने का कि गोइंग बैक टू कि अगर कोई बंदा कॉकी होता तो वो मुझे आके कहते, "भाई बॉल दो मुझे, मैं कराऊँगा।" और मैं मना तो नहीं करता उनको। कोर्स। लेकिन उनका जो तरीका था बात करने का, इवन जब फील्ड में हम काम कर रहे होते थे कि अच्छा बॉलिंग चेंज क्या करें, फील्डर्स क्या करें, वो ऐसे आके मुझे रिक्वेस्ट करते थे जैसे मैं शाहिद अफ़रीदी हूँ और वो हमज़ा तारिक है। तो बहुत अच्छा उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और इवन जाते वक़्त उन्होंने मुझे इवन ये तक कहा कि कभी भी आप कराची आओगे, कुछ भी करोगे, क्योंकि मैंने उनको याद दिलाया था मैं जब 8 साल का था कि 9 साल का था, मेरा कज़न मुझे उनके घर लेके गया था, उनसे मिलवाने, कराची में। तो और उन्होंने मुझे बॉल दी थी एक। तो उस वक़्त के बाद ये मैं उनको इतने सालों बाद फिर वहाँ मिला था। तो मैंने कहा आपको तो याद नहीं होगा लेकिन मुझे याद है। तो उन्होंने कहा चलो तुम फिर जब कराची आओगे मेक श्योर तुम वापस आना। तो एक बहुत ही अच्छा उनकी तरफ से जेस्चर था वो। दैट्स अमेजिंग। आपने इतने बड़े प्लेयर्स की बात की और दूसरा आपने ये भी मेंशन किया सिकंदर रज़ा। हुँ, उनकी आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप भी हुई। हुँ, आप ज़िम्बाब्वे गए, वहाँ पे हुँ। आपने मैचेस खेले ज़िम्बाब्वे के अगेंस्ट। एक स्टोरी मुझे उड़ती-उड़ती मिली थी अच्छा। कि उसमें ये हुआ कि जी सिकंदर रज़ा आपके चेंज रूम में आए हैं वहाँ पे। उन्होंने बोला बाहर निकल के ऑल द वे जाके मारो एक छक्का, बॉलर के ऊपर चढ़ो। तो जब आप बॉलर के ऊपर चढ़ने की कोशिश की अगले मैच में तो क्या हुआ? ये आपको उड़ती-सी खबर कहाँ से आई है पहले ये बताएँ? ये मैटर नहीं करता बट व्यूअर्स वांट टू नो हुआ क्या? थोड़ी-सी एम्बैरेसिंग स्टोरी है क्योंकि एग्ज़ीक्यूशन मेरी तरफ से नहीं हुई। लेकिन उस स्टोरी से पहले मैं आपको थोड़ा सिकंदर रज़ा के कैरेक्टर के बारे में बता देता हूँ। हम अभी ज़िम्बाब्वे पहुँचे ही थे, हरारे में थे और हमारी टीम नेट सेशन कर रही थी। तो मैं बैटिंग कर रहा था, तो एक बच्चा भागता हुआ आया तो उसने कहा कि हमज़ा तारिक कौन है? तो कोच ने कहा वो बैटिंग कर रहा है। तो वो नेट के पीछे आया बच्चा और उसने कहा कि वो आपका ना सिकंदर रज़ा वेट कर रहे हैं, वो आपको बुला रहे हैं। तो मैंने कहा सिकंदर रज़ा मैं तो अभी मिला भी नहीं हूँ, वो क्यों मेरा वेट कर रहे हैं, वो क्यों बुला रहे हैं? सही। तो मैंने कहा अच्छा मैं बस बैटिंग फिनिश करके आता हूँ। तो मुझे 15 मिनट लगे एटलीस्ट जब मेरी बैटिंग ख़त्म हुई और वो वेट ही कर रहे थे वहाँ प्रैक्टिस के बाहर। तो मैं उनके पास गया तो सलाम किया, उनसे मिला तो इट वाज़ वेरी नाइस ऑफ हिम कि उन्होंने कहा कि यार आप मेरे कंट्री में आए हो, मेरे सिटी में आए हो। आपने अगर हलाल फूड चाहिए या जुम्मे की नमाज़ पढ़नी है, तो ये मेरा नंबर है। प्लीज़ आप मुझे फ़ोन करना, आई विल लुक आफ्टर यू गाइज़। तो ये एक बहुत ही बड़ा मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस था क्योंकि हम क्या है, हम ऐसा कभी करते ही नहीं अपने गेस्ट को। बहुत कम होता है कि बाहर से टीम आती है, हम तो वैसे ही अपने ही उसमें कॉकी बने होते हैं राइट। कि भाई हम ये, हम वो। लेकिन वो उस वक़्त ज़िम्बाब्वे के कैप्टन थे, सही है? तो वो एक बड़ा अच्छा मतलब पहला मोमेंट उनकी तरफ से था जो मुझे अभी तक याद है। और फिर उसके बाद मैं और फरहान और उस्मान लिम्बाडा, हम गए उनके साथ डिनर पे। अच्छा डिनर पे हम उनके साथ खाना खा रहे हैं, पहली रात डिनर किया, दूसरी रात भी डिनर किया, तीसरे दिन उनके घर गए। तो चौथे दिन हम डिनर फिर कर रहे थे, तो ये चेंज रूम में नहीं आए थे, वो डिनर हम कर रहे थे। सही। तो उससे 1 दिन पहले मैं प्रॉस्पर उत्सेया से आउट हुआ था, उनका ऑफ स्पिनर, राइट। जो वापस कमबैक उसने किया था रीमॉडल्ड एक्शन के साथ क्योंकि उसका चेकिंग का इश्यू था। तो रीमॉडल्ड एक्शन के साथ था और ज़्यादा कोई टर्न नहीं कर रहा था वो। तो उन्होंने कहा, "यार हमज़ा यार तुम किससे आउट हो रहे हो? इसको तो पहला बॉल ही करे निकल के छक्का मारना चाहिए।" सही। मैं कहा, "बात तो सही कर रहे हैं।" अच्छा उसमें मेरे अंदर भी दिमाग कम था। सही। तो
मैंने कहा ठीक है। मैंने फरहान से कहा, मैंने कहा यार क्या कहता है, मार दूँ पहले बॉल पे निकल के? कहता है भाई क्या बात कर रहे हो, आउट हो गया तो अजीब लगेगा ना। ये लिम्बाडा था शायद, लिम्बाडा को मैंने कहा था, इनमें से कोई एक था। अच्छा, अगले पूरी रात में सोचता रहा कि इसको मारूँ ना मारूँ, मारूँ ना मारूँ। अगले दिन मैच हुआ तो हमारी पहली बैटिंग आई। हाँ, मैं 5वें नंबर पे गया था शायद। 3 आउट हुए हमारे तो 60 कुछ स्कोर था। नहीं 2 आउट हुए, सॉरी 60 कुछ स्कोर था। मैं अंदर गया और सामने वो आखिरी बॉल पे आउट हुआ और अगला ओवर प्रॉस्पर उत्सेया का और वो उसका पहला ओवर। मैंने कहा ये सही है। सही। ये पूरा ऊपर अल्लाह मियाँ ने बना एक पूरा स्क्रिप्ट तैयार कर दी है कि इसका भी पहला बॉल है, मेरा ही पहला बॉल। अब ये ना ये रहेगा ना क्या मैं रहा एक रहेगा दोनों में से? कोई एक ही रहेगा। और सिकंदर भाई स्टेडियम वहाँ आके मैच देख रहे थे, हाँ। वो उधर ही थे। अच्छा, उसने बॉल किया, मैं सोच के खड़ा था मैं इसको निकल के मारूंगा। उसने बॉल किया ना, अब क्योंकि मैं पूरी रात सोच के बैठा था कि मारूंगा, वो स्प्लिट सेकंड ऐसा था कि मैंने वहां का नहीं, आप एक स्प्लिट सेकंड आता ना कहता नहीं पुल आउट कर जाओ, लेकिन उस तक तक मैं आगे निकल चुका था। हाँ। और क्योंकि बॉडी मेरी रिएक्ट कर चुकी थी, मेरे हाथ गए, बॉल इनसाइड पार्ट ऑफ बैट लगा और इधर शॉर्ट मिड विकेट पे कैच हो गया। और मैं कैप्टन था टीम का, तो मैंने कहा ये क्या कर दिया मैंने। अच्छा, मैं वापस आ रहा हूँ चलते चलते, मैंने कहा आज तो कोच, और हमारे कोच थे मुकेश भाई, तो मैं वापस आ रहा हूँ तो मैंने कहा अब कोच ने तो नहीं छोड़ना मुझे हाँ। कि भाई ये आप कैप्टन हो के ये आपने क्या हरकत कर दिया। तो मैं वापस आया, पहले तो मैं छुपते छुपते ऊपर गया, उनकी स्टेज ऐसे ऊपर जाती हैं हरारे में, तो मैं जाके बैठ गया तो कोच वॉशरूम में थे, उन्होंने देखा ही नहीं क्या हुआ है। तो वो आए, कहते हैं हमजा क्या हुआ। मैंने कहा सर वो उसने बॉल किया, टर्न हुआ थोड़ा सा इधर लग के ना कैच हो गया, मैं सिंपल सीधा खेलने गया था। कहता अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। तो वो थोड़ा सा मतलब, और फिर मज़े की स्टोरी क्या है कि रात में जब हम मिले सेम डिनर स्पॉट पे, मैं सिकंदर भाई और फरहान, और सिकंदर भाई जिस बंदे ने इतनी एडवाइस दी थी, मुझे कहते हैं ये क्या किया तुमने, कौन करता है ऐसे। तो मैं उधर बैठा, मैं कहा सिकंदर भाई ये आपने क्या कर दिया मेरे साथ। तो उनके साथ तो ऐसा है कि मतलब भाइयों वाला एक वो है कि अ, बहुत ही वो जो 1 हफ्ते का टाइम था उनके साथ, बहुत हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद वो स्ट्रॉन्ग ही रहा। कुछ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ सिकंदर रज़ा की। ईयर्स अगो मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था योर विद समीर, ठीक है? उसमें मैंने हमज़ा से बोला कि यार मुझे कुछ ना प्लेयर्स जो है ना, उनकी कोई वीडियो बनवा दे कि आप ये ना ये शो देख रहे। कुछ बिफोर द एपिसोड स्टार्ट इस तरह करके ना छोटा-सा है। मैंने हमज़ा को बोला यार कोई यार प्लेयर 1-2 कर दे। और मुझे काफ़ी प्लेयर्स आए, उसमें से सबसे बिगेस्ट नेम जो था वो सिकंदर रज़ा का। वाह। और बंदे का इतना जो है कि हू केयर्स कि यार छोटा-सा जो वो होता है ना लोकल टेलीविज़न शो या कोई पॉडकास्ट, उसमें इतना बड़ा प्लेयर, आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि इस तरह करके वो राज़ी हो जाएगा कि या आई विल डू व्हाट यू नीड टू डू बिकॉज़ इट्स फॉर द सेक ऑफ क्रिकेट, राइट? तो इतनी बंदे की वो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इवन राइट नाउ कि आई विल नेवर फॉरगेट दैट। हुँ। जूनियर लेवल, सीनियर लेवल, हर एक प्लेयर की एक अपनी ना एक पर्सनैलिटी होती है, ठीक है? तो मोस्ट एम्बैरेसिंग या कोई ऐसी कोई क्रेज़ी एक्सक्यूज़ कभी कोई किसी प्लेयर ने बनाई है कि यार मैं आज नहीं आ सकता या मैं आज मुझे ना इंजरी हो गई है, कुछ ऐसा कोई आपके साथ हुआ? ये तो अक्सर हुआ है, ये तो एक प्लेयर की एक रूटीन है ये वाली। तो ये लाइफ में ये प्लेयर के साथ हुआ है और होता है। हमने भी अपने यंग टाइम पे ये चीज़ें की हुई है, तो वो समझते हैं हम लोग कि ये फेस से ही पता लग जाता है कि ये क्यों झूठ क्या बोल रहा है, अच्छा ये कुछ करना चाहता है, वो तो डज़न्ट मैटर, ये चलता है, ये ये चलता है। है। आपने नोटिस किया अगर हायर लेवल पे भी ये चीज़ है कि कम है? नहीं, बहुत कम है, वहाँ हाई लेवल पे नहीं है। सारे प्लेयर्स प्रोफेशनल हाँ, हैं। क्योंकि प्रोफ़ेशनल हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि वो एक क्या कहते हैं कि मीन के वो ज़ाहिर है पैसे भी ले रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो डिसिप्लिन में रहेंगे हर चीज़ में। उसमें वो बहाना नहीं है, अगर है तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देंगे कि ये नेक्स्ट मैच मैं नहीं खेल सकता, प्रैक्टिस नहीं कर सकता, मुझे टाइम चाहिए, तो वो ये इतना नहीं है उनका। सही। आपने उस्मान लब्बारा का बात की और ईयर्स अगो आपने मुझे बताया कि वो एक ऐसा प्लेयर है जो वो बाउंड्री से थ्रो मारता है, तो बॉल ज़ुप करके आके ना आपके विकेट कीपिंग ग्लव्स में आती है।
आपने सीनियर लेवल पे भी खेला, आपने बाकी लेवल्स पे भी खेला। क्या डिफरेंस है उस बंदे की थ्रो में? आई थिंक उसके जैसा फ़ील्डर मैंने, चाहे मैं सीपीएल की बात करूँ, जीटी20 की, बहुत कम फ़ील्डर देखे हैं वैसे। और वो गॉड गिफ्टेड ही था इन अ वे कि जिस तरह वो मूव करता था, जिस तरह वो डाइव मारता था, बॉल पकड़ता था, थ्रो करता था, और उसकी थ्रो एक्यूरेट सीधा स्टंप के ऊपर ही आती थी जितनी दूर से भी वो मारे। और ये नहीं कि लॉब करते आती थी, वो आती थी फ्लैट। और वो जान के क्या करता था कि जब किसी बैट्समैन ने शॉट मारा बाउंड्री की तरफ, तो वो जान के लेज़ी भागता था कि बैट्समैन दूसरे के लिए भागे। और जैसे ही वो दूसरे के लिए भागता था, वो बॉल पकड़ के और उसके हाथ से छुट के मेरे हाथ तक पहुँचने तक, वो बैट्समैन को भी नहीं पता लगता था कि कैसे बॉल यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो उसके जैसा मैंने आर्म कहीं भी नहीं देखा। चाहे मैं बड़े-बड़े क्रिकेटर्स की भी बात करूँ, काफ़ी अच्छे-अच्छे जो फ़ील्डर्स हैं, जैसे टीकेआर में बहुत अच्छे फ़ील्डर थे कुछ, लेकिन उसके जैसा आर्म या उसकी जैसी जो मूवमेंट है, वो मैंने बहुत, बहुत कम देखी है। बहुत वेल सेड। अच्छा, अभी मैं स्विच गियर करना चाहता हूँ और आपसे कोई लोकल जर्नी के बारे में पूछना चाहता हूँ। आपने एकेडमी स्टार्ट की, पहले तो ये बताएं कि ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? जो एकेडमी स्टार्ट हुई है 2022 में हुई है स्टार्ट। और ये स्टार्ट हुई थी 2 रीज़न्स की वजह से। एक रीज़न ये था कि मेरा जो नेफ्यू है, वो उस वक़्त था मेरे ख़्याल से 8-9 साल का शायद। और वो मुझे एक दिन कहता है कि हम ना स्कूल में लंच ब्रेक में हम दोस्त क्रिकेट खेलते हैं। मैंने कहा, तुम लोग क्रिकेट क्यों तुम तो इधर पैदा हुए हो, तुम कैसे क्रिकेट खेलते हो और क्यों खेलते हो? कहते हैं, नहीं हम पाकिस्तान इंडिया करके खेलते हैं। मैं और हैरान हुआ, मैंने कहा पाकिस्तान इंडिया करके कैसे खेलते हो? कहते हैं जो इंडियन बच्चे हैं वो एक साइड पे होते हैं, उनकी टीम का नाम इंडिया होता है, हम पाकिस्तानी हैं और हम। मैंने कहा, लेकिन आप तो पैदा ही इधर हो। कहते हैं, नहीं वो भी इधर ही पैदा हुए हैं, हाँ, लेकिन उनके अम्मी अब्बू इंडिया से हैं और हमारे जो हमारी टीम है वो पाकिस्तान से है। सही। तो हम पाकिस्तान से इंडिया करके खेलते हैं, बहुत मज़ा आता है। और उसी दौरान उसने मुझे कहा कि, और मुझे मामू साहब वो कहता है, तो कहता है, मामू साहब ये व्हाई इज़ इट कि यू गेट टू ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड प्ले क्रिकेट एंड देयर इज़ नथिंग फॉर अस। तो वो एक मोमेंट था जो एक स्पार्क होता है ना, आपको चाहिए होता है, जो वो लिखा था कि वो होना था। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में ऐसे ही घुस गई कि ओके इनके लिए कुछ करते हैं। दूसरी चीज़ ये थी कि जो वुमेन क्रिकेटर्स जो अभी भी हैं और वो उस वक़्त ऑब्वियसली भी खेल रही थीं, उन्होंने मुझे बातों-बातों में 2-3 बार ये कहा था कि यार आप लोग, उस वक़्त डेवी जेकब्स एक बार आया था पहले हमारे लिए। आई थिंक टोरंटो में आया था, वो जो रूट की अकेडमी के लोग आए थे। तो उन्होंने कहा कि यार हमारे लिए कोई कभी नहीं ये करता और हमारे लिए कभी कोई कोचेज़ नहीं आते। तो वो दूसरा रीज़न था जिसकी वजह से हमने अपना पहला कैंप सेटअप किया था, जो डोनोवन मिलर को बुलाया था। और वो कैंप था 3 दिन का, सिर्फ़ जून में। इंग्लैंड में? इनलैंड पे था, इनलैंड स्मॉल पे। और उसका पर्पस सिर्फ़ ये था कि यार चलो कुछ स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो सरप्राइज़िंगली हमारे पास उन 3 दिन में टोटल जो रजिस्ट्रेशंस आई थी वो ऑलमोस्ट 150 बच्चों की आई थी। तो वहाँ से हर पेरेंट का एक ही सवाल था, व्हाट्स नेक्स्ट? सही। कि आर यू गोइंग टू जस्ट डू दिस वन्स अ ईयर? 3 दिन का आप करोगे और गायब हो जाओगे, फिर अगले साल 3 दिन का करोगे? तो मैंने ऐसी बातों-बातों में उनको कहा, नहीं, नहीं 3 दिन का नहीं, अभी हमारी फॉल अकेडमी स्टार्ट हो रही है सितंबर से। ना उस वक़्त हमारी कोई प्लानिंग थी, ना उस वक़्त हमारे पास कोई कोचेज़ थे, सिर्फ़ मैं और फरहान थे। और हमने बस बोल दिया लोगों को कि ये सितंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब बोल दिया था, तो स्टार्ट भी करना था। फिर हमने जगह ढूँढी कि करेंगे कहाँ पर। तो वो हायर लेवल स्पोर्ट्स अकेडमी होती थी मालबरो में, जहाँ पर हमने स्टार्ट किया, बहुत छोटी-सी जगह। उस वक़्त हमारे साथ आए शहज़ाद भाई, ये शहज़ाद भाई नहीं, एक और शहज़ाद भाई थे पहले, जो सीडीसीएल में भी कोचिंग करते हैं। तो वो हमारे साथ वो इन्वॉल्व हुए। कामरान हुसैन वो भी थोड़ी देर के लिए हुए थे, और रोमिल। तो ये हमारी 4 लोगों की, 4-5 लोगों की टीम बन गई थी। सही। उसमें जो इनिशियल जो हमें एक बूस्ट मिला, वो क्रेडिट काफ़ी जाता है शहज़ाद भाई को। क्योंकि उन्होंने, उनके कॉन्टैक्ट या रिलेशनशिप थे, जो बच्चे जो उनके अंडर ट्रेनिंग लेते थे सीएनडीसीएल में, उनके पेरेंट्स के साथ। लोग मुझे जानते थे लेकिन मैं लोगों को नहीं जानता था।
पेरेंट्स को नहीं जानता था, बच्चों को नहीं जानता था। फरहान का भी सेम था। तो हमने प्लेटफ़ॉर्म तो हमने क्रिएट किया कि यार ये इस तरह करते हैं प्रोग्राम। लेकिन जो इनिशियल वेव ऑफ बच्चे जो थे ना, वो शहज़ाद भाई की वजह से आए थे। और फिर वहाँ से हमने आप इन 4 बंदों के जो मैंने आपको नाम बताएँ, किसी से भी पूछो, हम एवरी वीक हम टिम हॉर्टन में मिलते थे वेस्ट विंड्स पे। 2 ढाई घंटे बैठ के हम सेशन की प्लानिंग करते थे, क्योंकि उस वक़्त तक ना मैं एक्सपीरियंस है, शहज़ाद भाई थे क्योंकि वो कोच थे। मैं नहीं था, फरहान नहीं था एक्सपीरियंस। हाँ, क्रिकेट खेले थे लेकिन कोचिंग हैट नहीं थी, जैसे उन्होंने कहा ना कि कोच बन गए। तो वो सारी चीज़ हमने फिगर आउट की कि कैसे करना है, कैसे प्लानिंग बना करनी है, हर एज ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए। तो वहाँ से फिर हमने विंटर सेशन स्टार्ट किए, फिर सॉरी फॉल सेशन स्टार्ट किए, फिर विंटर किए एंड देन फिर करते गए। राइट्स ग्रेट। आप भी इस जर्नी के बिग पार्ट हैं। तो आपने क्या नोटिस किया जब आप गैलरी में आए, फ्यूचर क्रिकेट स्टार एकेडमी देखी आपने, यहाँ पे आपने क्या चेंजेस देखी हैं ओवर द टाइम दैट यू हैव स्पेंट? मैंने ये चीज़ें देखी कि यहाँ पे डेवलपमेंट तो बहुत कम है बच्चों में, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे अकेडमी जो है बहुत कम है, कोचेस बहुत कम है। पेरेंट्स को शौक है, राइट। बच्चों को शौक है, लेकिन उनको एक पाथवे दिखाने के लिए कोई नहीं है। तो वो जो फ्यूचर स्टार ने ये जो स्टेप लिया है ना, ये कैलगरी में, ये बहुत अच्छा स्टेप है। और होप सो कि आपको 2 एंड 3 इयर्स आफ्टर बहुत अच्छे प्लेयर मिलेंगे यहाँ से। देखिए, जैसे आपने पहले भी दोनों ने बोला कि गेम पेशेंस की है, जी। राइट? कि अभी देखें वुमेन क्रिकेट का टूर्नामेंट हुआ, उससे पहले यू19 का आफ्टर 10 इयर्स, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर आवर सिटी कि दोबारा ये चीज़ रिवाइव हुई है। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हैंड इन हैंड जाती हैं, राइट? 100%। अकेडमीज़, वेदर इज़ फ्यूचर क्रिकेट स्टार या कोई और अकेडमी, दिस इज़ गुड फॉर क्रिकेट। हमें ये चीज़ें और चाहिए, 100%। राइट? सो पेरेंट्स का जैसे आपने बोला कि पैशन है, प्लेयर्स का पैशन है, बट ये मिसिंग एक पजल नहीं जिस तरह होता, ये सारे एक छोटे-छोटे पीसेस हैं। अगर ये इनमें से एक भी पीस नहीं होगा, तो काम नहीं गाड़ी नहीं जा सकती, 100%। राइट? सो दैट्स वेयर आई थिंक इट्स सो इम्पोर्टेंट एंड मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि 10 साल बाद U19 की इंटरसिटी हुई है। हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट इन कैलगरी, एडमिंटन, अल्बर्टा एंड बियॉन्ड? आई थिंक 10 साल नहीं, 10 साल से भी ज़्यादा हो गए। एग्ज़ैक्टली मुझे नहीं पता कि 12 साल हैं कि 14 साल हैं, लेकिन 10 साल से ज़्यादा हैं। और आप किसी भी देखो स्पोर्ट्स में देखोगे ना, जब तक ग्रास रूट लेवल पे पाथवे सिस्टम नहीं है, आपका ग्रोथ आपका जो ग्रोथ है ना, वो हो ही नहीं सकती। अगर आप क्रिकेट की ग्रोथ देखो कैलगरी में अभी तक पिछले कुछ सालों में, वो सारी ग्रोथ हुई है इमिग्रेशन की वजह से। ठीक है, जब लिबरल पावर में थे, उन्होंने इमिग्रेशन लॉस रिलैक्स किए हुए थे। हर जगह से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मेजॉरिटी इंडिया से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं। तो वो सारे प्लेयर थे। ठीक है, अब वो चीज़ें चेंज हो रही हैं या हो चुकी हैं। तो जब तक आप अपना एक फैक्ट्री नहीं बनाओगे, या सिर्फ ये नहीं कि फ्यूचर क्रिकेट स्टार सिर्फ एक फैक्ट्री, बाकी भी फैक्ट्रीज बने। ठीक है, बाकी भी जूनियर प्रोग्राम स्टार्ट हो। ग्लेनमोर बहुत अच्छा प्रोग्राम, एक्चुअली उनसे उनसे इंस्पिरेशन ली थी हमने, ग्लेनमोर से। उनकी उनका काम देख के कॉन्फिडेंस मिला था कि यार ये हो सकता है, कर सकते हैं हम। तो बाकी भी छोटी छोटी अभी खुल रही हैं, तो ये लोगों को और करना चाहिए। और जो पाथवे है इनटू द सीनियर क्रिकेट, जब आप अभी हमारे जो लीग है बच्चों की, उसमें 450 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। अब वो 450 बच्चों में से अगर 100 बच्चे भी अडल्ट लीग में जाते हैं, ठीक है, दैट्स टेक्निकली 6 मोर टीम्स। एवरी ईयर अगर 100 जाते हैं, 450 भी ना जाएं, दैट्स हाउ यू ग्रो द गेम। अगर हम सिर्फ ये रिलाई करें कि एक्सटर्नल फैक्टर से हमारी क्रिकेट ग्रो हो, तो वो एक सर्टेन अमाउंट तक होगी होगी ग्रो, लेकिन वो सिर्फ क्वांटिटी में होगी, क्वालिटी में नहीं। जो क्वालिटी है ना, वो प्रोवाइड करती है अकेडमीज। कोचेस। और सिर्फ अकेडमीज नहीं, कोचेस। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने बहुत ये पिछले 2 साल में सीखी है कि किसी भी स्पोर्ट को ग्रो करने के लिए द फर्स्ट थिंग यू नीड इज कोचेस। आपके पास अगर एक कोच है, तो आप एक स्कूल में जा सकते हो या एक प्रोग्राम रन कर सकते हो। आपके पास 15 कोच हैं, तो आप एक ही टाइम पे 15 स्कूल में 15 प्रोग्राम रन कर सकते हो। और अच्छे कोचेस, ये नहीं कि कोई भी उठ के कहे कि वाइडली मैं, अवेलेबल। हाँ, मैं कोच हूँ। क्योंकि आपने अगर देखो, अगर आपने डेवलपमेंट करनी है और आपने प्रॉपर क्वालिटी बनानी है,
तो आपने बेसिक से लेवल से ही सही चीज़ें सिखानी हैं। अभी अगर आप हमारी एकेडमी में हो, व्हिच यू हैव बीन देयर अ फ्यू टाइम्स, जो अंडर 7 के बच्चे जो सीख रहे हैं अभी, आज से पहले कब हुआ है कि सिर्फ कैलगरी नहीं, पूरे कनाडा में, कि एक 3 साल का बच्चा या 4 साल का बच्चा अभी से सीखना शुरू हो गया। हाँ, इंडिया में होता है, पाकिस्तान में होता होगा, लेकिन कनाडा में तो नहीं होता था। तो यहाँ से फिर आपकी क्वालिटी बनती है और यहीं से फिर आपकी क्वांटिटी भी बनेगी इवेंचुअली ऑन नेक्स्ट 5-10 इयर्स। तो अंडर 19 के आने का मकसद, हमने अंडर 17 सस्कैचुअन को भी बुलाया था। अभी ओमान से एक टीम आ रही है, वो उनका वीज़ा का वेट कर रहे हैं हम। वो अंडर 15 अंडर 17 होगी। तो द रीज़न फॉर दैट इज़ कि बच्चे भी एक्साइटेड होते हैं कि यार हम हमारे लिए भी तो कुछ है, अंडर 15 अंडर 17 अंडर 19। अच्छा लेवल खेलोगे तो ही क्रिकेट का मज़ा आएगा। आई रिमेंबर ग्रोइंग अप जब हम अंडर 19 ही और ये सारे डिफरेंट लेवल्स हमने खेले हैं। तो उसमें ये एक्साइटमेंट होती थी, ये आपको नींद नहीं थी आती मैच से पहले जिस कि भई आज हमने ना बीसी को खेलना है। आज हमने टूर्नामेंट फेवरेट्स को खेलना और आज हमने उन्हें हराना भी है। और जब आप हराते हो उस बड़ी टीम को तो आपको जो फील गुड मोमेंट होता है ना आपका, वो आप रिप्लेस नहीं कर सकते एंड यू विल नेवर फॉरगेट दैट। इस तरह के जो मोमेंट्स अगर हम अभी नहीं क्रिएट करेंगे बच्चों के लिए तो वो क्रिकेट को भूल जाएंगे और देखो, ये मोमेंट्स उस वक्त क्रिएट होते हैं जब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। अगर ये अपॉर्चुनिटीज़ ना हो, अंडर 15 अंडर 17 या इवन फ्रॉम अंडर 7 अंडर 11 अंडर 15 अंडर 17 अंडर 19, क्या इन बच्चों को अडल्ट लीग में चांस मिलेगा? ऐसे बने। तो जब उनको चांस ही नहीं मिलेगा, वो खेल ही नहीं पाएंगे मैचेस, तो वो कहेंगे कि मैं तो टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो चले जाएंगे। वो कहेंगे यार इससे अच्छा मैं पिकल बॉल खेल लूँ जो इंडिविजुअल स्पोर्ट है, बैडमिंटन खेल लूँ, टेनिस खेल लूँ, बास्केटबॉल भी खेलूँ, बॉल तो आएगी ना मेरे पास, शायद शूट करने को ना मिले। इधर तो मुझे बुलाते हैं और बाहर बिठा देते हैं, मैं पानी पिलाता रहता हूँ। सो वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बोला ये कि मैं यहाँ पे पानी पिलाता रहता हूँ। आप बताएं कि आपने ये वेरियस लेवल पे कितना पानी पिलाया? जितना शायद पानी मैंने पिलाया ना कनाडा में, शायद किसी ने पिलाया होगा। और ये जो पेशेंस की बात है ना, राइट। ये वो पानी पिलाने की वजह से मिला है। या पानी तो फिर स्वाब का भी काम है ना। बस ये आपने बड़ा स्वाब हर बोतल में 20-20 30 नेकियां थी। आपने तो किया है। नहीं कि मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब हम एक प्लेयर की एक प्रोफाइल देखते हैं ना तो आप सिर्फ हाईज ही देखते हो, ठीक है, आप लोज नहीं देखते। तो आप अपने लोज बताएं ना जरा। मैं आपको एक लो बताता हूँ अपना अंडर 19 टाइम में, और वो जो था उसकी वजह से फिर मुझे कभी वो फीलिंग ही नहीं आई। अंडर 19 वर्ल्ड कप क्वालिफायर था टोरंटो में, आपके अपने कंट्री में हो रहा है। 15 टीमें थी उधर, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, नेदरलैंड्स, अफगानिस्तान, कनाडा ऑब्वियसली, और बाकी जो एसोसिएट यूएई, ये एसोसिएट टीम्स थी सारी। और इधर से 6 टीमों ने जाना था वर्ल्ड कप में। हमारे हुए थे टोटल 10 या 11 मैच थे मेरे ख्याल से, नहीं सॉरी 14 मैच थे, क्योंकि हर टीम से हम एक मैच खेले थे। सही। वो 14 मैच में बैठा था। मुझे याद है उसका चीफ सेलेक्टर था अल्बर्टा से क्रिस जेम्स। तो मैं इतना डिसहार्ट हो गया था कि मैंने क्रिस को फ़ोन किया और मैंने कहा क्रिस, मेरी टिकट कराओ, मैंने वापस कैलगरी आना है। मैं क्या फ़ायदा मुझे इधर रहने का, जब मुझे मैच ही नहीं मिल रहा, मैं तो पानी पिलाई जा रहा हूँ, पिलाई जा रहा हूँ, पिलाई जा रहा हूँ। 14 गेम हो गए, अभी तक बैट भी मेरा भूल गया होगा कि ये बंदा क्रिकेटर है। तो उसने एक बात की जो मुझे आज तक मेरे दिमाग में रही, जब भी मुझे पानी पिलाना पड़ा ना, उस बात की वजह से मैं वापस ग्राउंडेड हो जाता था, रिलैक्स हो जाता था। उसने कहा हमज़ा, तुमने ये टफ टाइम गुजार लिया 14 मैचेस का, अभी तुम वापस आ गए ना, तो ये सारा जो टफ टाइम है ना, ये वेस्ट हो गया। सही। ठीक है। दूसरा, अगर तुम नेगेटिव रहे वहाँ पर, तो जब तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी भी ना, तो तुम फेल हो जाओगे, क्योंकि तुम जब बैटिंग करने अंदर जाओगे, कीपिंग करोगे, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ नेगेटिविटी चल रही होगी। सही। अपने आप को पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिव थॉट्स रखो। नहीं मिल रहा, तुम्हें पता है नहीं मिल रहा मैच, तो क्यों सोचना है, रिलैक्स करो, एंजॉय करो। ठीक है। और जिस तरह उसने, शायद मैं जिस तरह बता रहा हूँ ना, शायद मे बी व्यूअर्स को उस तरह फील ना हो रहा हो, लेकिन जिस तरह उसने मुझसे बात की थी, एक तो उसका सेंट किट से था, तो कैरिबियन एक्सेंट था, तो थोड़ा हैवी एक्सेंट था, तो वो बड़ा दिल पे जाके लगी बात। और फिर जब हम वर्ल्ड कप में गए, वर्ल्ड कप में पहला मैच हमारा वार्म अप मैच था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और मैं सिर्फ यही माइंडसेट से गया था कि पॉजिटिव रहूंगा। साउथ अफ्रीका ने किए 200 कुछ किए थे शायद हमारे खिलाफ, और हमारे और उनका कोई प्लान नहीं था मुझे बैटिंग देने का।
हमारे 38 पे 8 आउट हो गया, नहीं सॉरी 6 आउट हो गया। तो कोच ने कहा चलो यार सभी आउट हो रहे हैं, इसको भी दे देते हैं चांस, ये भी आउट हो जाएगा, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। लेकिन वो उसकी बात की वजह से जब मैं अंदर जा भी रहा था, हम 38 पे 6 थे और मैं नॉट आउट वापस आया था और मैंने 50 कुछ किया था उस मैच में। और उधर से वो एक तरह से मुझे मतलब कंफर्म हो गया कि यार ये जो बंदे ने बात की थी ना, इसका सिर्फ मुझे फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। हाँ, अगर मैं उल्टा कर जाऊँगा तो सिर्फ नुकसान है। तो फिर चाहे मैं नेशनल टीम, आशीष बगाई जब कैप्टन थे, ऑब्वियसली वो एक लेजेंड हैं कनाडा के। इतने रन्स किए उन्होंने, प्रॉब्ली द बेस्ट कीपर कनाडा हैज़ हैड विदाउट अ डाउट। तो अगर वो खेल रहे हैं और मैं यही सोचता रहूँ कि यार मुझे तो खिला ही नहीं रहा है, मुझे तो खिला ही नहीं रहा है, तो वो मैं अपने ही पे ही स्ट्रेस डाल रहा हूँ फॉर नो रीज़न। क्योंकि रियलिटी ये भी तो है, वो बंदा अच्छा है, वो कैप्टन है, उसको बिठा के थोड़ी मुझे खिलाएँगे, मेरा टाइम भी आएगा। फिर टीकेआर में भी पहला साल बैठा, लेकिन जब अपॉर्च्युनिटी मिली तो सीधा सेमीफ़ाइनल में मिली, ठीक है? फिर उसके बाद GT20 में खेला हूँ मैं पिछले 3-4 साल लगातार। पहले साल पानी पिलाया, ब्रावो कैप्टन था इवन दो, वो टीकेआर से मुझे जानता था, 1 मैच नहीं मिला। अगले साल मैचेस सारे मिले, ठीक है? उसमें परफ़ॉर्मेंस भी हुई, फिर टोरंटो नेशनल्स का कैप्टन भी बना। तो जब आप पेशेंट रहते हो ना, तो आप और पॉजिटिव रहते हो, तो थिंग्स विल टर्न अराउंड। बस आई नो इट्स ईज़ियर सेड देन डन, लेकिन आपको एक स्विच होता है जो फ्लिप करना होता है कि नहीं इट्स ओके, गिव इट सम टाइम। क्योंकि यहाँ पे लाइक आई सेड बिफोर कि यहाँ पे सिर्फ हाइज ही देखते हैं लोग, यस हमजा ने ये कर लिया, बट दे आर नॉट गोना लुक एट व्हाट ही इज गॉन थ्रू। आई रिमेंबर स्पीकिंग टू यू आफ्टर यू केम बैक फ्रॉम U19, ये जो आपने बात की है कि मुझे 14 गेम मैं आपको बात साहब बताऊँ, हम दैट वाज अ डिफरेंट हमजा, द गाय वाज जस्ट गॉन, डिप्रेशन और ये वो इस तरह की जो फील थी ना, इस हुँ। आई स्टिल रिमेंबर दैट। सो आपकी स्टोरी जो है ना एक देवदास की स्टोरी से कम। कोच आप बताएं कि ये जो सुपर 60 है, ऑब्वियसली कनाडा का अगर टेस्ट नेशन के लिहाज से देखा जाए तो नोवेयर क्लोज हैं अभी अब, बट T10 जो है वो कनेडियन क्रिकेट के लिए क्या करेगी आगे? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि जो ये सुपर सिक्स जो हो रहा है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक बिग गेम है। T10 फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो यहाँ की जो यंगस्टर के लिए बड़ा अच्छा साइन है, क्योंकि इसमें आपकी क्रिकेट दोबारा प्रमोट होगी। क्योंकि जो जहाँ लैक कर रहे हैं हम लोग, वही बेसिक जो चीज़ें हैं, ये दोबारा इस तरह की क्रिकेट दोबारा यहाँ पे BC में, क्योंकि टोरंटो में तो ऑलरेडी काफ़ी पैशंस है लड़कों में, क्लबें हैं, लॉट ऑफ अकेडमी है। इधर वो चीज़ मिस कर रहे थे। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा यंगस्टर बच्चों को, क्योंकि सुपरस्टार को देखेंगे, उनको अडॉप्ट करेंगे, एक रोल मॉडल बनेंगे वो प्लेयर्स बच्चों में। वो एक पैशन स्टार्ट होगा, और अच्छा साइन है। इस तरह के और मज़ीद टूर्नामेंट्स होने चाहिए यहाँ पे, ना कि ये T10 या T20। मैं ज़्यादा लाइक करता हूँ थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म जाने के लिए, कि ODI हो, टू डे मैच हो, टेस्ट मैच हो, वो ज़्यादा मैं प्रेफ़र करता हूँ, क्योंकि यंगस्टर के लिए। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि हमारे पाकिस्तान में यही हुआ था कि कोई 20 इयर्स शाहिद भाई स्टिल रहे हैं, तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छे सिक्सर मारते थे। हर एक बच्चे ने वो चीज़ अडॉप्ट कर ली। मैंने छक्का मारना है, मैंने सिक्सर मारना है, मैंने सिक्सर मारना है, शाहिद भाई। उस वजह से ना जो क्रिकेट है ना, आपकी बेसिक्स जो, वो ख़त्म हो रही थी। जो बायोमैकेनिक है आपके शॉट सिलेक्शन के, वो ख़त्म हो रहे थे, सिर्फ़ और सिर्फ़ छक्के ही माइंड में थे। सही। तो वो इसलिए कि ये जिस जो चल रहा है ना T10, क्योंकि मैं एज़ ए प्रोफ़ेशनल या कोच हूँ, मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि T20 हो, या इज़ अ फन गेम, इज़ फन तक ठीक है। सही। अगर स्किल्स के लिए जाएँ तो फिर वो आप क्योंकि आपकी क्रिकेट जो है वो डेवलप तभी होती है जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हो, ODI वनडे वो खेलते हो, तभी है। तो बाकी ये अच्छा स्टार्ट है, ये नहीं मैं कहूँगा कि नहीं, अच्छा स्टार्ट है। बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा प्लेयरों के थ्रू, और बहुत कुछ बच्चे अडॉप्ट करेंगे। ना कि कैलगरी के लिए ये फ़ायदा है कि बच्चे दोबारा ग्राउंडों में आएँगे। राइट। ये अच्छा साइन है। मतलब कोच ने ऑलरेडी ये चीज़ टच तो कर दी है, लेकिन मैं बेसिकली इनसे पूछना चाहता था या आपसे पूछ लो कि भाई ये जो रिस्क है, जो ये बात कर रहे हैं कि भाई
सारे मारने की कोशिश करेंगे क्योंकि T10 है तो T10 में तो मारना ही है, देयर इज नो लाइक रोकना रुकना तो है नहीं, राइट? तो आप क्या समझते हैं इसका रिस्क जो है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है सिस्टम के लिए सिस्टम के लिए और डेवलपमेंट और जूनियर क्रिकेट के लिए? देखो, दो 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 साइड्स हैं कॉइन की, ठीक है। एक ये है कि जो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं शहजाद भाई, कि अगर आपने अपने स्किल्स को डेवलप करना है, आपने अपनी टेक्निक को डेवलप करना है, अपने पेशेंस को, टेम्परामेंट को, तो आपको लंबी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी ज़्यादा। अब हम जैसे बच्चों के अंडर 19 के 50 ओवर भी कराते हैं, 2 डे मैचेस भी कराते हैं। वो सिर्फ इस रीज़न के लिए कराते हैं कि जब एक बच्चा क्रीज पे टाइम स्पेंड करेगा, और एक बच्चे ने 185 मारे उस दिन, ठीक है, अंडर 19 में, उस 185 की जो वैल्यू है ना, वो आपको T20 के 30 रन से नहीं कंपेयर कर सकते आप। राइट। जो उसका कॉन्फिडेंस, और उसी बच्चे ने पिछले 4 मैचों में 3 हंड्रेडें मार चुका है और एक 93 है उसका, ठीक है। सो उसको अब अपनी बैटिंग समझ आ रही है कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरी वीकनेसेस क्या हैं। वो खेलने के बाद जब आप उसको T10 में, T20 में डाल दोगे ना, वो 100% सक्सेसफुल होगा, क्योंकि उसकी चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं, बेस स्ट्रांग। बेस स्ट्रॉन्ग हो गई है। अब दूसरा जो साइड ऑफ द कॉइन ये है कि हमें ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्रिकेट बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। अब जहाँ पर हम बच्चे को सिखाते थे कि यार नीचे ड्राइव मारो, अब वही आप टेक्निकली करेक्ट ड्राइव मारो, लेकिन ऊपर से मारो, ठीक है। अगर आप कहते थे कि यार स्टंप्स वाली बॉल को फ्लिक ना करो, अब तो फ्लिक ही चल रही है, हर कोई फ्लिक मार रहा है, ठीक है। पुल जो है नीचे मारो, अब ऊपर ही मारनी है। तो आप सिखाओ उनको, सेम चीज़ रहे हो स्किल वाइज या टेक्निक वाइज, लेकिन उसमें एडजस्टमेंट कर रहे हो अकॉर्डिंग टू टुडेज वर्ल्ड। चाहे वो T20 है, चाहे वो T10 है, और जितना तेज़ होता जा रहा है, ये और चीज़ें जो हैं, जो कोचिंग टेक्निक्स हैं, जो क्लैरिटी की बात करते हैं हम, वो और इम्पोर्टेंट हो गई है। कि बच्चे को आप अगर ये बोल के भेजोगे ना कि जाओ और अपना आप गेम खेलो जो आप करते आ रहे हो, वो ज़्यादा वैल्यूबल है रादर देन ये ऐसे है, ये वैसे, ये इस तरह ये होगा, उस तरह वो होगा, वो बॉलर ये, वो बैट्समैन फील्डर ये, वो सब नहीं। बस जाओ, वॉच द बॉल, और आप उसको, अपने जो आपकी इंस्टिंक्ट हैं, उसको ट्रस्ट करो और खेलो। कुछ आप ऐसी चीज़ ऐड करना चाहते हैं जो एक यंगस्टर या कोई ऐसा जो छोटा बच्चा है जो अप एंड कमिंग है और आना चाह रहा है आगे, वो क्या करे? वो तो सिंपल है कि अगर अगर वो किसी कोचिंग के अंडर में कर रहा है, तो वो बेसिक मेन चीज़ है, बेसिक स्किल्स हैं, वही है। आप अगर रेपिटेशन जितना करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं देखा है वेदर कंडीशंस बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट है। क्योंकि बच्चों को जैसे ये विंटर आता है तो बच्चे वो 4 and 5 month एट होम, वो बाहर की एक्टिविटी बिल्कुल क्लोज हो जाती है। सही। तो मैं ये सजेशन करूँगा, जो आप अंडर द कोच या आप अगर किसी को रोल मॉडल बनाया हुआ है, अगर वो कैसे खेलता है तो कोशिश करें, मिलर मेथड करें, उसके सामने वो जितना अपने आप को एग्जीक्यूट करे। यूट्यूब पे तो अब बहुत सारे स्किल वर्क आ गए हुए हैं, अगर कोई सी भी शॉर्ट्स सीखनी है तो आप उसके ऊपर ऐड करें, तो वो घर बैठे के आप वो कर सकते हैं। क्योंकि मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशंस करें, जितना भी कर सकें। अगर पैशन है, ये नहीं है कि फॉर्मेलिटी सिर्फ एंजॉय के लिए, नहीं, एंजॉय क्रिकेट एंजॉय है, लेकिन बट स्किल डेवलपमेंट जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आपने अम, आपने आगे नाम लिया था हमारे लोकल सुपरस्टार कामरान हसैन का, और वो एक चीज़ बोलते हैं हमेशा कि क्रिकेट जो है ना आपको ज़्यादा रुलाती है और और हँसाती कम है कभी कभी। सो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आप आगे आ सकते हो। 100%। फॉर एकेडमी, फॉर ग्रोथ ऑफ क्रिकेट, फॉर नेक्स्ट 2-3 years, क्या प्लान्स? आम, देखो, मैं आपको सच बताऊं, जब एकेडमी स्टार्ट हुई थी ना और अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इस चीज़ में बिलीव ही नहीं रखता कि 2 साल, 3 साल, 5 साल का प्लान हो। मेरा हमेशा से बिलीव ये है कि आप अच्छी इंटेंशन से काम करो और करते रहो, मेहनत करते रहो। जो ऊपर वाले ने लिखा है आपके लिए, वो उसी टाइम पे उसी तरीके से आपको मिलेगा। मैं इधर प्लान करूं कि मैं अगले साल ये करूंगा, 2 साल में ये करूंगा, 3 साल में ये करूंगा, शायद 3 साल वाली चीज़ मुझे नेक्स्ट ईयर मिलनी है, मुझे तो नहीं पता। लेकिन मेरे हाथ में एक चीज़ है कि मैं मेहनत कर सकता हूँ अच्छी इंटेंशन के साथ। शहजाद भाई जो इधर आए, हमारे कभी प्लान में नहीं था,
वो तो हम इनको मिले वहाँ पर, बस ऐसा कनेक्शन बन गया तो वो आ गए। फैसिलिटी जो थी, हाँ, प्लान में था 1.5 साल पहले स्टार्ट करने का, लेकिन वो स्टार्ट इस साल हुई है। तो हाँ, आपका एक विज़न होता है, आप एक चीज़ सोचते हो कि यार हाँ, ये चीज़ करनी है हमने। अब कब होगी वो आपकी किस्मत में है। राइट। अब हमारा है कि हम जो हमारी फाउंडेशन है उसको बढ़ाएँ। वो जो फ्री प्रोग्रामिंग हम बच्चों के लिए करते हैं, सीनियर्स के लिए करते हैं, अब वुमेन के लिए कर रहे हैं, वो हम उसको और एक्सपैंड करें और बढ़ाएँ। वो जो बच्चे 450 हैं, वो 450 से हम 1000 करें, ठीक है? 1000 करेंगे तो फिर हमको ग्राउंड भी चाहिए होगा, तो ग्राउंड की तरफ भी काम करें। अगर 1000 बच्चे हो जाते हैं तो फैसिलिटी भी बड़ी चाहिए होगी, उसकी तरफ भी काम करें। तो ये सारी चीज़ें हमारा एक विज़न है कि यार ये चीज़ें हमको चाहिए और इवेंचुअली चाहिए होंगी। क्या टाइमलाइन है वो आपको और मुझे बाद में पता लगेगा। के बाद साहब कोई ऐसी स्टोरी मुझे बताएं कि जो कोई फनी स्टोरी है कलंदर के साथ या कोई और। वो इस तरह की है स्टोरी कि हमारी प्रैक्टिस थी, ठीक है? तो सारे प्लेयरों के लगेज जो है ना, वो जा रहे थे। बेल बॉय आया, मैंने उसको कहा ठीक है ये मेरा बैग है, तो ले जाना। उसने बैग मेरा लेके गया, ज़ाहिर है सारे इक्विपमेंट से, फील्डिंग से, एवरीथिंग। तो वो ले गया, उसने वो बैग नहीं डाला बैग गाड़ी में, सही। ठीक है? मैंने कहा डाल दिया होगा। ये पहली मिस्टेक थी, मैं कभी इस तरह नहीं करता। मैं कहा चल यार रख देगा उसी, सबके जा रहे हैं मेरा भी जा। उसने वो बैग नहीं रखा, वो रहने दिया, बाकी सारे बैग गाड़ी में। हम लोग चले गए। जब ग्राउंड में पहुँचे तो सबसे पहले मैं अपना बैग लेता हूँ। मैं देख रहा हूँ मेरा बैग नहीं है, बैग नहीं है। मैं कहा शायद कोई किसी गाड़ी में और वैन में, छोटी वैन में आ रहा होगा। सब प्लेयरों ने ले लिया सब कुछ। अब सेटअप सबसे पहले मैंने लगाना होता है, हर चीज़ का। बैग ही नहीं है। मैं जल्दी-जल्दी गया, मैं खामोशी से आकिब भाई को कहा, "आकिब भाई, मेरा बैग नहीं आया।" आकिब भाई एकदम थोड़ा-सा खामोश हुए, देखा मेरी तरफ, सोचा फिर। उन्होंने कहा, "ओके, अब क्या है? कुछ तो है तेरे पास इस टाइम पे?" मैं कहा, "नहीं।" कहता, "अच्छा मैं करता हूँ कुछ, करता हूँ।" अच्छा, उसी टाइम ना दूसरे कोच आए, वो होता है ना सम टाइम कोच, ये कर देंगे, ये कर देंगे। वो दोनों कहते हुए, "ठहरो, ओके, शहज़ाद तू ऐसे कर, सबको कह जाके कि आज हम लोग पहले 20 मिनट ना पावर हिटिंग करेंगे।" सही। सबके तो बैटर के, बॉलर्स के सबके बैग आए हुए थे। मैंने सबको कहा कि भई जाके ये करें। 15 मिनट के अंदर-अंदर ना, मैं कहा कितनी देर लगेगी? आकिब भाई कहते वो अगर बैग आता है तो? कहते 20 मिनट। मैनेजर को बुलाया, मैनेजर आया, जो शहज़ाद का बैग जो है ना, जाके टैक्सी कराओ और जल्दी लेके आओ। वो 20 मिनट जो थे ना, मैं जो चीज़ आकिब भाई से सीखी ना, प्रेशर में क्या चीज़ करनी चाहिए और कैसे करना, वो उसमें क्वालिटी है। तो वो एंगेज किया, सबको पावर हिटिंग में लगा दिया, ठीक है? और वो बैग 20 मिनट में आया, मुझे बताया कि बैग आ गया, तो अपना सेटअप लगा, मैं इधर हैंडल करता हूँ। मैं गया, मैंने अपना सेटअप लगाया, उनको फ़ील ही नहीं हुआ कि ये हैपन हुआ है। अगर वो उस टाइम पे प्लेयर्स के अंदर वो चीज़ शुरू हो जाती, राइट। तो वो एक इम्प्रेशन गलत पड़ता है मैनेजमेंट पे यार। तो वो चीज़ आकब जी ने जो हैंडल की ना उस टाइम पे, तो वो चीज़ें मैंने ड्यूरिंग द ट्रायल भी बड़ा कुछ सीखा उनसे कि प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। वो एकदम अपने आप को उस टाइम पे खामोश और स्टिल हो जाते हैं और सोचते हैं ए और बी प्लान क्या हो सकता है ऑन द स्पॉट। वो जो एग्जीक्यूशन है ना, वो चीज़ जो मैंने उनसे सीखी है ना, वो अभी तक मैं स्टिल करता हूँ। तो वो हैपन जो है ना मेरे लिए वो लाइफ का वो रहा है और है। मतलब भाई अगर आपसे पूछें तो जी कोई कोई फनी स्टोरी सुनाना। अ, ये पहले तो मैं क्या लगा था अफ्रीकन नगर अकेडमी में भी ये कराएँगे आपके साथ। हम आपका बैग छोड़ देंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। नहीं कुछ नहीं होता। क्योंकि मसला क्या है कि हमारे सारे ग्राउंड अकेडमी से बहुत दूर है, 20 मिनट दूर नहीं है। बहुत सारी एक्टिविटी है माइंड में, कुछ भी हो सकता है। नहीं, आप मुझे बताएं कि कोई आपकी कोई फनी स्टोरी जो कनेडियन क्रिकेट में वेदर इज जूनियर लेवल या सीनियर लेवल या विद लीग्स, कोई ऐसी कोई स्टोरी जो। नहीं, फ़नी स्टोरीज़ तो आप देखो, आप भी क्रिकेट खेले हो। फ़नी स्टोरीज़ तो हर टीम में होती हैं, हर टूर पे होती हैं, हर जगह होती हैं। लेकिन कुछ फ़नी स्टोरीज़ हैं वो बता नहीं सकते कैमरे के सामने। तो लेकिन ये वाली एक बता सकता हूँ मैं, और मैं ये भी आपको बोलूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब सात बिन ज़फ़र सिटी में हो ना टूर्नामेंट खेलना है,
तो उसके जैसा स्टोरी टेलर कोई नहीं है पूरी नेशनल टीम में। तो आप उनसे स्टोरियाँ पूछना, वो बहुत अच्छी-अच्छी बताएगा और बहुत अच्छे तरीके से बताएगा, और आपने थोड़ा उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ़नी करना हो, तो आप सेम एपिसोड पे खुरम चौहान को बुला लेना। तो ये दोनों मिलके आपको बहुत फ़नी स्टोरी सुनाएँगे। अच्छा, गोइंग बैक टू आवर फ़नी स्टोरी, नेशनल टीम में तो हैं काफ़ी, लेकिन एक मैं आपको बताता हूँ फरहान मलिक की। सब जानते हैं उसको, तो वो लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँगे उससे। तो जब हम टोरंटो नेशनल में साथ थे, तो वहाँ पर क्या था कि ऑब्वियसली 3-4 स्ट्रिप्स होती हैं जब आप मैच खेल रहे होते हो स्टेडियम में। तो सुबह जब पता लगता था कि मैच हम खेल रहे हैं, तो हम मैच देखते थे कि यार पिच कैसा खेल रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और 1 दिन पहले भी देखते थे। तो 1 दिन पहले जैसे हम मैच देख रहे हैं तो फास्ट बॉलर अच्छा कर रहे हैं, तो हम कहते थे यार अच्छा हमको फास्ट बॉलर ज़्यादा चाहिए, तो मैं और शहजाद भाई टीम बनाते थे। सही। तो अच्छा फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा चाहिए तो हमको स्पिनर कम चाहिए। शाहिद भाई भी एक ऑप्शन है, साद भी एक ऑप्शन है। तो फरहान नहीं खेलेगा। तो हम मैच पे जाते थे, अगले दिन तो वो स्ट्रिप चेंज हो जाती थी, तो वो स्पिनर की स्ट्रिप हो जाती थी। तो 2 बार ऐसे हुआ कि लास्ट मिनट फरहान को टीम में डालना पड़ा, क्योंकि विकेट ही ऐसा था। अच्छा, तीसरी बार क्या हुआ कि टीम सारी सेट प्रॉपर हमने स्पिन के लिए ही पिक की थी। शाहिद भाई की बैक में दर्द शुरू हो गया। अच्छा, फरहान हम वार्म अप कर रहे थे, तो फरहान आपको पता है सुबह-सुबह कैसे होता है। तो वो वार्म अप कर रहा है ऐसे, और चश्मे लगाए हुए हैं, ऐसे ढीला-ढीला, उसके हाई नीज़ हो रही हैं, उसके पाँव भी नहीं हिल रहे हैं। तो लास्ट मिनट चेंज हुई, शाहिद भाई ने कहा मेरा बैक का मसला है, तो हमने कहा स्पिनर भी डालना है और बैट्समैन भी किसी तरह डालना है। सही। तो हमें कुछ करना पड़ा कि एक स्पिनर और एक बैट्समैन डाल दें, कहीं किसी और को निकाल के। तो फरहान की आप देखो, एक बंदा उसकी एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हुई हुई है, और टीम हमने डिसाइड की, तो मैं भागता हुआ गया फरहान के पास, मैंने कहा रेडी हो जा, तू खेल रहा है आज। तो वो एकदम से ना मुझे उसने ऐसे देखा, उसकी आंखें खुल गई कि अच्छा मैं खेल रहा हूँ आज। मैं कहा हाँ, मैं कहा वो शाहिद भाई इंजर्ड हैं, तो तू खेल रहा है। तो उसका जो रिप्लाई था ना मुझे, वो ये था, मैं शाहिद भाई को रिप्लेस कर रहा हूँ। तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, मैंने कहा कि ये क्या बंदा है, एक तो इसको मर मर के मैसेज मिल रहे हैं, ये किसी भी प्लेइंग 11 में होता नहीं है, अल्लाह मियाँ को चेंज करते हैं तो ये घुस जाता है। तो इसको लग रहा है ये शाहिद अफरीदी को रिप्लेस कर रहा है। मैंने कहा नहीं भाई, आप शाहिद अफरीदी को नहीं कर रहे, हमको स्पिनर चाहिए, तो आप इसलिए टीम में आ रहे हो। तो वो जो उसका रिएक्शन था ना, वो टॉस पे जाने से पहले लिटरली मैं ऐसे उसके पास गया, फिर टॉस पे गया हूँ, तो मैं हंसते-हंसते ही गया हूँ टॉस पे। तो वो बहुत ही फनी सा छोटा-सा मोमेंट था जो उसने क्रिएट किया उस दिन। अच्छा, मुझे आपने कुछ सालों पहले एक बात बताई थी कि वेरी सिमिलर थिंग एक्चुअली हैपेंड टू यू हुँ, एट केकेआर हुँ। कि मकलम साहब इंजर्ड है हाँ, एंड ही इज लाइक यू नो व्हाट, कोच इनको बोलता है कि भाई यू आर गोना प्ले टुडे, ये हमजा इज रेडी टू गो, कीपिंग हो रही है, उधर बैटिंग की प्रैक्टिस हो रही है, ही इज रेडी टू गो, एंड देन लास्ट मिनट मकलम गोज अप टू द कोच एंड सेज कोच आई एम रेडी टू गो। बिल्कुल। वापस पानी पिलाया आप एक दिन। ये गयाना में हुआ था, सुबह का मैच था। मकलम की उस साल ना पहला साल था उसका, बैक में इशू था, और उसका क्या था कि उसका कोई डिस्क का मसला था कि उसकी पूरी मैच के बाद ना टाँग ये फ़ील नहीं होती थी उसको। तो उस सुबह उसकी टाँग बहुत ख़राब थी, क्योंकि बैक टू बैक मैचेस खेल रहे थे। एक दिन पहले खेले थे और फिर उस दिन। तो कोच मेरे पास सुबह आया, उसने कहा कि हमज़ा आज तुम खेल रहे हो और तुम ओपन करोगे, मकलम नहीं खेल रहा। तो मैं आप भी मुकल्लम करो प्लीज। नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मैं सिर्फ़ ये कहा कि अच्छा चलो, मकलम की जगह खेल रहा हूँ, कीपिंग भी मिलेगी, तो मैं सारा कुछ मतलब तैयारी में लग गया अपनी। तो टॉस होने से पहले कोच मेरे पास आया, और साइमन गेटिस की ये बड़ी अच्छी बात थी कि वो आपको क्लैरिटी, वही बात है, क्लैरिटी देता था। वो आया, उसने कहा सॉरी माइट, ही इज़ फीलिंग वेल। उसने मेरे सामने मेरा नाम काटा, मकलम का नाम लिखा, और वो उसने कैप्टन को दे दी शीट, जो 3 शीट्स Where थी। we have that score sheet या वो जो स्क्वाड शीट होती है जो हम लगा सके इस पे, पर और वो पता है वो कैसा था, वो जो स्कोर शीट थी ना, मकलम का नाम था, काट के मेरा नाम था, काट के मकलम का नाम था। और फिर उसके बाद मैं ना, क्योंकि मकलम के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप था, तो मैं उसके पास गया, बैज़, उसको निकनेम बैज़ है ना उसका, तो मैंने कहा बैज़, couldn't you just wait till tomorrow? मैंने कहा आई वाज़ गेटिंग एन अपॉर्च्युनिटी, और वो इतना मतलब स्वीट बंदा था, वो मुझे अपोलोजाइज़ कर रहा है। कहता है आई एम सो सॉरी बट यू नो मैं अब सही फ़ील कर रहा हूँ, ये मैंने कहा यू डोंट नीड टू अपोलोजाइज़, इट्स यू नो ऑब्वियसली मैं भी ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो वो एक फन मोमेंट था कि
मुझे भी फील हुआ कि आज तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो बस तो आपने भी ऑलमोस्ट रिप्लेस कर दी मैंने भी ऑलमोस्ट कर दिया। On that note, we thank you all for watching Crick Chat powered by Umar Sheikh. Stay in touch. We're going to bring you a lot of content. Thank you.